Hello students, welcome to DSS online classes. Today we are going to study our next topic in your first lesson of class 9 chemistry, matter in our surrounding, the characteristics of particles of matter. In my previous video, I have described you that what is diffusion, how the matter intermix with each other, okay, how the particles of higher concentrated matter goes towards lower concentrated matter and intermix between the intermolecular space of lower concentrated matter. You have understand in my previous video. Okay. Now today I am going to describe you that what are the characteristics of particles of matter. Like I have told you in my previous video that there are mainly 4 characteristics of particles of matter. The first one is the particles of matter are very small. The second one is the particles of matter have space between them, which we know it intermolecular space by name. Okay. The particles of matter are constantly moving, third property of the particles, and the particles of matter attract each other. These are the mainly 4 properties that I have told you. Now today I am going to describe that the first properties of the particles of matter, that the particles of matter are very small. Let's see how you can prove that the particles of matter are very small. To prove that the particles of matter are very small, we take a beaker, glass beaker, okay, and we take 100 ml of water in this beaker. How much water? 100 ml. You have to take 100 ml of water in the beaker. You know very well that water is colorless. आप जानते हैं अच्छे से कि वाटर जो होता है वो कलरलेस होता है, ओके. एंड देन यू टेक certain crystals of potassium permanganate. What is potassium permanganate? KMnO4. The chemical formula of potassium permanganate is KMnO4. Okay. KMnO4 potassium permanganate एक पर्पल कलर का, पर्पल कलर आप जानते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का बहुत ही छोटा क्रिस्टल होता है, वेरी स्मॉल क्रिस्टल. ओके. जो 100 ml वाटर हमने इस बीकर में लिया है, इसमें हम 4 to 5 पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे छोटे क्रिस्टल्स जो हैं डाल देते हैं. ठीक है. आफ्टर ड्रॉपिंग द 4 or 5 crystals of potassium permanganate in this water, 100 ml water, we see that the whole 100 ml water convert into dark purple color. ओके. ये जो 100 ml हमने वाटर लिया था, इसमें 4 से 5 छोटे छोटे पोटेशियम परमैंगनेट के जब हमने क्रिस्टल डाले हैं, तो ये होल वाटर जो है डार्क पर्पल कलर में कन्वर्ट हो गया बच्चों. ओके. नाउ दिस happened by the process of diffusion. You have already studied in my previous video that how the higher concentrated particles goes towards lower how a solid diffuse in a liquid. पोटेशियम परमैंगनेट डिफ्यूज्ड इन वाटर. ओके. कैसे डिफ्यूज हुआ है? पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स को वाटर के पार्टिकल्स जो है हिट किए हैं लगातार, जिससे कि पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो गया है, और ये वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है इसमें आकर के मिक्स हो गया है, जिससे पूरा जो वाटर है कलरलेस वाटर वो डार्क पर्पल कलर में कन्वर्ट हो गया है. आफ्टर दैट वी टेक अनदर ग्लास बीकर. इसके बाद हम फिर से एक ग्लास का बीकर लेते हैं, और इस ग्लास के बीकर में हम 90 ml वाटर लेते हैं बच्चों. क्या लेते हैं? 90 ml वाटर लेते हैं. प्रीवियस बीकर में हमने 100 ml वाटर लिया था, उसमें 4 से 5 पोटेशियम परमैंगनेट डाला था, जिससे कि ये डार्क पर्पल कलर में पोटेशियम परमैंगनेट वाटर में मिलके इस वाटर को डार्क पर्पल कलर का सॉल्यूशन बना दिया था. अब हम क्या कर रहे हैं? 90 ml वाटर लिए हैं, और प्रीवियस बीकर से जिसमें डार्क पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर का मिक्सचर था, उसमें से हम 10 ml या तो ड्रॉपर से, ठीक है ना, या किसी भी ग्लास ट्यूब से ले करके उसको कलरलेस 90 ml वाटर में हम डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं. ठीक है. डाइल्यूशन मतलब प्रीवियस जो मिक्सचर है उसको हम वाटर में, जब भी वाटर में किसी भी सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं तो इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं. ओके बच्चों, डाइल्यूशन इसी प्रोसेस कहते हैं. तो प्रीवियस बीकर से जब हम फिर से
कलरलेस 90 ml वाटर में डालते हैं तो ये 100 ml हो जाएगा। 10 ml हम मिक्सचर ऑफ फ्रॉम प्रीवियस बीकर ले करके पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर का इसमें डालते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि ये वाला भी जो 90 ml वाटर था 10 ml जब हम मिक्सचर डालते हैं प्रीवियस बीकर से तो ये वाटर भी पोटेशियम परमैंगनेट के वजह से डार्क पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगेन हम इस डाइल्यूशन को दूसरे बीकर में करते हैं, फिर 90 ml वाटर लेते हैं, 10 ml हम इससे प्रीवियस बीकर से लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर के सॉल्यूशन को, फिर इस बीकर में हम डालते हैं। इस प्रोसेस को, ये डाइल्यूशन का प्रोसेस हम 4 से 5 बार करते हैं। तो लास्ट में हम देखते हैं कि लास्ट वाला जो बीकर है उसका कलर जो है लाइटर पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लास्ट वाले बीकर में भी कलर रहता है। इससे ये प्रूफ होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का जब हम नंबर ऑफ टाइम्स डाइल्यूशन करते हैं तब भी पोटेशियम परमैंगनेट का कितना भी हम कंसंट्रेशन कम कर देते हैं, एक छोटा सा क्रिस्टल जो है पोटेशियम परमैंगनेट का वाटर के इतना ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाने के बावजूद वाटर के कलर को कलर्ड कर दे रहा है, वाटर कलरलेस वाटर को कलर्ड कर रहा है। इससे ये प्रूफ होता है दैट स्मॉल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ये जो छोटा सा क्रिस्टल था, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल जो था पोटेशियम परमैंगनेट का, कंटेन मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, लाखों पार्टिकल्स, करोड़ों पार्टिकल्स को एक छोटा सा क्रिस्टल रखा है पोटेशियम परमैंगनेट का, ड्यू टू विच इट मेक द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू इट्स कलर। इसी वजह से ये छोटा सा क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का इतना ज्यादा क्वांटिटी में वाटर होने पर भी उसको कलर्ड रख रहा है। लास्ट में भी वाटर का जो बीकर है उसमें भी हल्का हल्का पिंक कलर हमें दिखाई दे रहा है। इससे ये प्रूफ होता है अभी भी इस वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं, जिस वजह से इस वाटर का कलर पिंक है। इट मीन्स दैट द स्मॉल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, which proves that the particles of matter are very very small। यही हमें प्रूफ करता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत छोटे होते हैं। कैसे हुआ? पार्टिकल्स जो थे ये पोटेशियम परमैंगनेट के, इसको वाटर के पार्टिकल्स हिट किए तो ये पार्टिकल्स जो है ब्रेक हुए, इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है टूट गया और ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था उसमें आकर के इंटरमिक्स हो गए। और ये डाइल्यूशन हम वाटर की क्वांटिटी बढ़ाते गए, बार बार किए, फिर भी पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स वाटर में पाए गए। इससे ये प्रूफ होता है कि छोटा सा क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स कंटेन कर रहा है। एक छोटा सा क्रिस्टल जिसको आप अपने नेकेड आइज से बहुत ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा। इट प्रूव्स दैट a small crystal of potassium permanganate contain millions of particles. It means that the particles of matter are very very small. Particles जो atoms and molecules मैटर में होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको समझाया। लेट्स सी आवर सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। दूसरी प्रॉपर्टी ये है दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसको भी हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करें, और ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको कराऊंगा जब भी आपका ऑफलाइन क्लास चलेगा। लैब में ये एक्सपेरिमेंट पोटेशियम परमैंगनेट का मैं आपको लैब में कराऊंगा, जितने भी एक्सपेरिमेंट में आपको बता रहा हूँ। लेट्स सी आवर सेकंड प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, व्हिच इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। स्टूडेंट्स, our second property is the particles of matter have space between them. How you can prove it that the particles of matter have space between them? For this we take a beaker. In this beaker we take 100 ml of water. हम एक बीकर लेते हैं बच्चों और उसमें 100 ml वाटर लेते हैं, ठीक है। और इस 100 ml वाटर में हम 50 ग्राम शुगर डालते हैं। शुगर आप जानते हैं, सुक्रोज, चीनी को कहते हैं सुक्रोज, जिसका केमिकल नेम है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में आप पढ़ेंगे, सुक्रोज का फर्मेंटेशन कराते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, ठीक है। तो ये जो शुगर है, शुगर को जब हम वाटर में डालते हैं तो वाटर में जब डालते हैं और ये 100 ml वाटर को हम मार्क कर लेते हैं बीकर पे, किसी भी मार्कर से हम मार्क कर देंगे, ठीक है। अब ये 100 ml वाटर में जब शुगर लेते हैं और इसमें एक ग्लास रॉड ले लेते हैं, इस ग्लास रॉड से हम उसको स्टीयर करते हैं,
स्टीयर मतलब उसको हम मिक्स करते हैं उसमें, तो आफ्टर सम टाइम वी सी दैट द होल शुगर मिक्स इन वाटर, जो पूरा शुगर था वो वाटर में इंटरमिक्स हो जाता है और इनविजिबल हो जाता है, मतलब वो हमें दिखाई नहीं देता है, वाटर में वो पूरा इंटरमिक्स हो जाता है। कैसे होता है? आप जानते हैं कि वाटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, H2O वाटर जो है मॉलिक्यूल है और वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, एंड दे हिट कॉन्टिन्यूसली शुगर पार्टिकल, शुगर का जो पार्टिकल होगा उसको वाटर के पार्टिकल्स लगातार हिट करेंगे, और शुगर के पार्टिकल जो होते हैं उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे टूट जाएगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब उनमें मोशन आ जाएगा, वो बहुत तेज मोशन करने लगेंगे, और धीरे धीरे जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो मोशन करते हुए वाटर के इंटरमोलिकुलर स्पेस में आकर के इंटरमिक्स होने लगेंगे। ठीक है, जब वाटर के इंटरमोलिकुलर स्पेस में आकर के इंटरमिक्स होने लगेंगे तो वो इनविजिबल हो जाएंगे और पूरा शुगर जो है वाटर में डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हुआ है, बट हम इस डिफ्यूजन के प्रोसेस के बाद शुगर जब वाटर में इंटरमिक्स हो जाता है, इसके बाद जब हम देखते हैं कि वाटर का लेवल बढ़ा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि 100 ml वाटर में हमने 50 ग्राम शुगर डाला था, क्योंकि 50 ग्राम शुगर भी एक मास है, तो वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना होगा, तो इसमें वाटर का लेवल तो बढ़ जाना चाहिए शुगर की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज द शुगर पार्टिकल्स कम बिटवीन द स्पेस ऑफ वाटर पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है उसमें शुगर के पार्टिकल्स आकर के इंटरमिक्स हो जाते हैं, और इस तरह से शुगर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमिक्स होने की वजह से वो इनविजिबल हो जाते हैं, मतलब हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, ये इस बाय दिस एक्सपेरिमेंट वी प्रूव दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू शुगर का वाटर में इंटरमिक्स होना और वाटर का लेवल ना बढ़ना हम ये प्रूफ करता है कि पार्टिकल्स जो है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। इससे प्रूफ होता है कि जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। तो ये तो हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गया पार्टिकल्स ऑफ मैटर का। लेट्स सी आवर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसको भी हम एक्सपेरिमेंट से प्रूव करेंगे। बच्चों, हमारी थर्ड प्रॉपर्टी जो है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, जो कि गैस में सबसे ज्यादा मूव करते हैं, लिक्विड में थोड़ा गैस के कंपेयर से कम मूव करते हैं, क्योंकि गैस के पार्टिकल से ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड के पार्टिकल्स में, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जिसके वजह से पार्टिकल्स मोशन करते हैं, और सॉलिड में बहुत ही कम होती है। जहाँ रहता है पार्टिकल वहीं पे वाइब्रेट करता है, उनमें मूवमेंट बहुत ही कम होता है सॉलिड में। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम ब्राउनियन मोशन का एक्सपेरिमेंटली आपको एग्जांपल दे सकते हैं। व्हाट इज ब्राउनियन मोशन? सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट ने 1827 में ब्राउनियन मोशन का डिस्कवरी किया था। फॉर दिस ही टेक सम पॉलन ग्रेन्स पार्टिकल्स। पॉलन ग्रेन्स क्या होता है? पॉलन ग्रेन येलो कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो फ्लावर के मेल पोर्शन पे पाया जाता है बच्चों। ठीक है ना, आप बायो में पढ़ते होंगे, फ्लावर के मेल पोर्शन पे येलो कलर का पॉलन ग्रेन पाया जाता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं पॉलन ग्रेन के। जब हम एक बीकर में वाटर लेते हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने जब एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ही टेक अ बीकर एंड टेक सम वाटर इन द बीकर एंड ड्रॉप दीज पोलन ग्रेन्स पार्टिकल्स इन दिस वाटर। और इन पोलन ग्रेन्स के पार्टिकल्स को इस वाटर में इन्होंने डाल दिया। फिर इन्होंने क्या देखा? अपने नेकेड आइज से तो ये नहीं देख पा रहे थे, लेकिन क्यों? क्योंकि हम आंख से और अपने नेकेड आइज से या फिर माइक्रोस्कोप से भी वाटर के पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वाटर के पार्टिकल जो H2O से मिलकर बना होता है वाटर। H2O एक मॉलिक्यूल है जिससे मिलकर पूरा वाटर बना होता है। एक एक पार्टिकल जो होगा वो H2O होगा वाटर का। इसको हम आंख से नहीं देख सकते हैं, ना तो माइक्रोस्कोप से, बहुत ही छोटा होता है। लेकिन पॉलन ग्रेन्स को हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जब इन्होंने पॉलन ग्रेन को डाला, ठीक है, तो जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से वाटर के अंदर देखा, he saw that the water particles hit the pollen grains particles continuously from all direction। उन्होंने क्या देखा कि वाटर के पार्टिकल्स जो हैं लगातार पॉलन ग्रेन्स के पार्टिकल्स को चारों तरफ से हिट कर रहे हैं। ठीक है,
और वाटर के पार्टिकल्स के हिट करने की वजह से पॉलन ग्रेन्स के पार्टिकल जो है लगातार जिग जैग पाथ में रैंडमली मोशन कर रहे हैं। रैंडमली मतलब द पॉलन ग्रेन्स पार्टिकल रैंडमली मूव इन जिग जैग पाथ। जिग जैग पाथ मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते में मोशन करना, लगातार इधर उधर भाग रहे हैं। इधर से वाटर का पार्टिकल मार रहा है तो इधर भाग रहा है, सपोज इधर से वाटर का पार्टिकल मार रहा है तो इधर भाग रहा है ये, ठीक है। तो वाटर के पार्टिकल्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स के जो पार्टिकल हैं वो लगातार जिग जैग पाथ में मोशन कर रहे हैं। जिग जैग मतलब हैप्पैजार्ड मोशन, मतलब एक कॉन्टिन्यूअस मोशन नहीं, एक डायरेक्शन में नहीं, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा मोशन कर रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया जिग जैग पाथ। इसको क्या कहेंगे? जिग जैग पाथ। और जिग जैग पाथ में जो मोशन होता है इसी को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ब्राउनियन मोशन क्यों नाम रखा गया? क्योंकि इसका डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इसका नाम ब्राउनियन मोशन रखा गया। तो ब्राउनियन मोशन से हमें ये पता चलता है that the particles of matter are constantly moving. In this way we can conclude that the particles of matter are constantly moving by the example of Brownian motion. और भी आप एग्जांपल दे सकते हैं that the particles of matter are constantly moving। अगर आपको प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे कि मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं, इफ यू आर सिट इन अ डार्क रूम, और आप अगर खिड़की से कहीं से उजाला आ रहा होता है तो आप देखते हैं बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स वहाँ से आते हैं। वो डस्ट के पार्टिकल्स को आप अगर ध्यान से देखो तो लगातार वो जिग जैग पाथ में मोशन करते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है ब्राउनियन मोशन का। ये डस्ट के पार्टिकल्स लगातार क्यों इधर उधर भागते हैं, क्यों जिग जैग पाथ में मोशन करते हैं? क्योंकि डस्ट के पार्टिकल्स को एयर के पार्टिकल्स लगातार हिट करते हैं। हिट करने की वजह से डस्ट के पार्टिकल्स पे जब एयर के पार्टिकल्स, एयर जो है गैसेस से मिलकर बना होता है, जब वो डस्ट को हिट करेगा तो वो डस्ट लगातार जिग जैग पाथ में दूसरे डस्ट को हिट करेगा और वो लगातार इधर उधर जिग जैग पाथ में मोशन करने लगेगा। इससे प्रूफ होता है जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो मोशन करते हैं। जब तक कोई बॉडी किसी अदर बॉडी को फोर्स नहीं लगाएगा तब तक कोई बॉडी अदर मोशन में तो आएगा ही नहीं। तो डस्ट पे कोई अदर पार्टिकल फोर्स लगाया होगा ना, जब मोशन में होगा तभी तो लगाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। और भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि हम परफ्यूम यूज करते हैं तो हमारे परफ्यूम का स्मेल अदर पर्सन, कोई दूर जो बैठा है उसको कैसे स्मेल करता है? क्योंकि जो परफ्यूम जिन पार्टिकल्स के मिलने से बना होता है, परफ्यूम ईस्टर से बना होता है। ईस्टर एक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। तो परफ्यूम के पार्टिकल्स जो हैं लगातार एयर के पार्टिकल्स के हिट करने की वजह से कॉन्स्टेंटली मूव करते हुए अदर पर्सन के नोज के पास, नोज में चले जाते हैं, जिससे कि कॉन्स्टेंटली मोशन होने की वजह से परफ्यूम के पार्टिकल्स एयर में डिफ्यूज होता है और कॉन्स्टेंटली मूव करते हुए अदर पर्सन के नोज के पास चले जाने की वजह से हमें स्मेल करेगा, किसी को भी स्मेल करेगा परफ्यूम। यही रीजन है दैट इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये कुछ मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया, एक ब्राउनियन मोशन का मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बता दिया और कुछ मैंने एग्जांपल आपको दे दिए कि आप कैसे प्रूव करेंगे दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। लेट्स सी हाउ यू कैन प्रूव। स्टूडेंट्स, our fourth property is the particles of matter attract each other. How you can prove that the particles of matter attract each other? पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कैसे आप प्रूव करेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर? फॉर दिस वी टेक अ चॉक एंड आइस क्यूब एंड एन आयरन नेल। इसके लिए हम एक चॉक लेते हैं, आइस क्यूब, ठीक है, और आयरन नेल लेते हैं और एक हैमर हम लेते हैं। हैमर से इन तीनों ऑब्जेक्ट्स पे हैमरिंग करते हैं, पीटते हैं। ठीक है, ऑन हैमरिंग ऑन द चॉक जो है, जब हम इस पे हैमर से मारते हैं, ठीक है, तो वो इट ब्रोकन डाउन इजिली। तो चॉक जो है आसानी से जो है टूट जाता है। जब हम हैमर से आइस क्यूब पे मारते हैं, इट विल टेक मोर फोर्स देन द चॉक। ठीक है ना, चॉक को जितना ब्रेक करने में फोर्स लगा था उससे ज्यादा फोर्स हमको आइस क्यूब को ब्रेक करने में लगता है। वही जब हम हैमर से हैमरिंग करते हैं आयरन नेल पे, ठीक है, तो क्या होता है कि आयरन नेल डज नॉट ब्रेक, आयरन नेल नहीं ब्रेक होता है। इससे ये प्रूफ होता है
it proves that the particles of chalk is attached with each other by less force of attraction than the particles of ice, and the particles of आयरन नेल, जो कि आयरन से बना हुआ है, Fe से, Fe के पार्टिकल्स के मिलने से बना हुआ है आयरन नेल, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आइस क्यूब और चॉक दोनों से ज्यादा है, ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट प्रूव्स दैट अलग अलग मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स are made up of different particles and different object particles have different force of attraction, which proves that the particles of matter attract each other। इससे ये प्रूफ होता है हमें कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप प्रूफ कर सकते हैं that the particles of matter attract each other। In my next video I will describe you the physical properties of the states of matter। सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मेनली मैं आपको वो डिस्क्राइब करूंगा। उसको डिस्क्राइब करने से पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि रिजिड और फ्लूइड क्या होता है बच्चों, व्हाट इज रिजिड एंड व्हाट इज फ्लूइड। उसके बाद मैं आपको डिटेल में सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टी बताऊंगा। इस लेक्चर को आप अच्छे से, इस वीडियो को आप वॉच कीजिए और रिवाइज कीजिए। इसका जो नोट्स है, पीडीएफ है, इस लेसन का नोट्स का पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगा। ओके, थैंक यू।